محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ دیکھ رہے ہیں روشن ٹی وی. روشن ٹی وی خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے. خبرنامے کا آغاز کرتے ہیں حدیث مبارکہ سے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے سب سے زیادہ سعادت کسے ملے گی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، مجھے یقین تھا کہ تم سے پہلے کوئی اس کے بارے میں مجھ سے دریافت نہیں کرے گا، کیونکہ میں نے اس حدیث کے متعلق تمہاری حرص دیکھ لی تھی. سنو، قیامت میں سب سے زیادہ فیض یاب میری شفاعت سے وہ شخص ہوگا جو سچے دل سے یا سچے جی سے لا الہ الا اللہ کہے گا. آغاز کرنے سے پہلے نظر ڈالتے ہیں ہیڈ لائنز پر. گیٹڈ کمیونٹیز کے بالمقابل ڈبل بیڈ روم. سدی پیٹ میں ڈبل بیڈ روم. آئی ٹی پارک. ڈگری کالج. رائتو ویدیکا و تلنگانہ بھون کا ریاستی وزیر اعلیٰ KCR ہریش راؤ و وملا پرشانت ریڈی نے کیا دورہ. بودھ رکن اسمبلی شکیل عامر کی نو منتخبہ مندر کمیٹی کی جانب سے تہنیتی تقریب کا اہتمام. روشن ٹی وی کی خبر کا سر. درگاہ بڑا پہاڑ پر رقم وصولی معاملے پر وقف بورڈ آئی حرکت میں، لیکن وہ درگاہ کی ترقی کے لیے بورڈ ابھی خاموش. مہم ابھی جاری. مرکزی حکومت کے نئے بل کے خلاف 11 دسمبر بروز جمعہ شہر و ملک کے تمام خانگی ہاسپٹلز بند. IM میں صدر ڈاکٹر کویتا ریڈی کا صحافتی بیان. ورلڈ ہیومن رائٹس ڈے کے مد نظر ہیومن رائٹس کونسل آف انڈیا کی جانب سے طلباء میں تحفوں کی تقسیم. اب بڑھتے خبروں کی تفصیل کی جانب. روشن ٹی وی کی روشنی. ریاست بھر میں روشن ٹی وی کا اثر. بڑے پہاڑ میں جبرن رقم وصولی معاملے پر ریاستی وقف بورڈ صدر محمد سلیم نے دیا کارروائی کا تیقن، لیکن درگاہ کی رکی ہوئی ترقی کے معاملے پر رہے خاموش. گزشتہ 3 دن قبل روشن ٹی وی پر ریاست کی مشہور و معروف درگاہ حضرت سید سعد اللہ حسینی رحمۃ اللہ علیہ بڑا پہاڑ پر مزاوروں کی جانب سے جبرن رقم وصولی کے معاملے کو نشر کیا تھا، جس کو شہر کے نوجوان سمیر اربان اور ان کے دوستوں نے بہادری کے ساتھ منظر عام پر لایا تھا، جس کو سوشل میڈیا پر اور ٹی وی پر بڑی تعداد میں عوام نے مشاہدہ کیا. اور یہ خبر نہ صرف ریاست میں بلکہ پورے ہندوستان میں پھیل چکی ہے، جس پر منعقدہ ریاستی وقف بورڈ اجلاس میں یہ معاملہ بھی زیر بحث آیا، اور جس پر وقف بورڈ صدر محمد سلیم نے عوام کو تیقن دیا کہ وہ اس معاملے کی پوری طرح جانچ کریں گے اور زائرین کو اس طرح کے ہراسانی سے نجات دلائیں گے. لیکن درگاہ بڑے پہاڑ کو اور بھی ترقی فراہم کرنے یا پھر اس طرح کا دورہ کرنے کے مطابق کوئی کچھ نہ کہنا اس بات کی وضاحت کرتا ہے کہ وہ درگاہ کی ترقی کے لیے کس قدر سنجیدہ ہے. آج بورڈ میٹنگ پورے ممبرس ہر کام یونانیمسلی ہوا اور 77 ایجنڈاز میں 23 کمیٹیز تھے، جس میں گریو یارڈس مسجد کمیٹیز اس کو کنفرم کرے، 6 متولیز کو اپائنٹ کرے اور 4 جو ہے نا پرمیشن دیے کنسٹرکشن گریو یارڈ کا، مسجد وغیرہ جو بھی ڈیولپمنٹ کا. اور اب دوسرے چیز جو ہے نا درگاہوں کو جو ہے نا ٹوائلٹس وغیرہ جان پاک شریف میں جہانگیر پیروں کی درگاہ میں اور بھی درگاہ شریف میں جو ہے نا جہاں ٹوائلٹس وغیرہ کا پرابلم ہے وہاں پر ٹوائلٹس وغیرہ بنائیں گے، بلکہ درگاہوں میں جو ہے نا زائرین کے لیے سہولت کے لیے جو ہے نا کنسٹرکشن کرائیں گے، وہاں پر ٹوائلٹس وغیرہ جو درگاہ میں پرابلم ہے وہاں پر یہ کریں گے. پولیس ایسوسی ایشن کی جانب سے مرحوم ون ٹاؤن عیسائی مبین کے اہلیہ کو 1,23,500 روپے کا چیک پولیس کمشنر کارتکیہ نے کیا حوالے اور مرحوم کی خدمات کو دی خراج.
محکمہ پولیس ایک خاندان کی طرح ہے اور یہاں پر ایک دوسرے کی مدد کے لیے ہر کوئی ہمیشہ سے تیار رہتا ہے۔ ان خیالات کا اظہار نظام آباد ضلع پولیس کمشنر کارتکیہ نے آج پولیس ایسوسی ایشن کی جانب سے مرحوم ایسائی ایم اے مبین کی اہلیہ کو مالی امداد فراہم کرتے ہوئے کیا اور مرحوم کے ورثہ کو پرسہ دیتے ہوئے پولیس ایسوسی ایشن کی جانب سے جمع کردہ پولیس ڈیتھ فنڈ میں سے 1,23,500 روپے کا چیک حوالے کیا۔ اس موقع پر پولیس ایسوسی ایشن صدر شکیل پاشا موجود تھے۔ بودھن رکن اسمبلی شکیل عامر نے سائی بابا مندر کمیٹی کی جانب سے منعقد کردہ انتخابات میں فتح حاصل کرنے والے کارکنان کے نام کا اعلان کرے انار گارڈن میں منعقد کردہ شادی تقریب میں شرکت کر نئے شادی شدہ جوڑے کو مبارکباد پیش کی۔ بودھن رکن اسمبلی شکیل عامر نے سری سائی بابا مندر کمیٹی کی جانب سے منعقد کردہ انتخابات میں کامیابی حاصل کرنے والے گوشالہ روڈ بودھن شہر سے تعلق رکھنے والے کارکنان کا نام اعلان کر کے مبارکباد دینے کے بعد انہوں نے انار گارڈن میں منعقد ہونے والی شادی تقریب میں شرکت کرتے ہوئے شادی شدہ جوڑے کو مبارکباد۔ اس موقع پر ان کے ساتھ TRS پارٹی سے وابستہ قائدین و کارکنان نے شرکت کی۔ మళ్ళా దీనికి గతంలో ప్రెసిడెంట్గా పనిచేస్తున్న కమిటీ ప్రెసిడెంట్గా పనిచేస్తున్న సుభాష్ గారు వారి మరణం పట్ల ప్రగాఢ సహానుభూతి తెలియజేస్తూ మళ్ళా 3 సంవత్సరాల దాదాపు 4 సంవత్సరాల క్రితం ఇక్కడ మళ్ళా గీతా ప్రచార మండలి సమక్షంలో కొద్దిగా ఇష్యూస్ జరుగుతున్నాయి। మళ్ళా సుభాష్ గారికి ఇక్కడ అనేక సంవత్సరాల నుంచి ఏదో ఇష్యూస్ నడిచినప్పటికీ చాలామంది నా దగ్గర వచ్చి మళ్ళా సుభాష్ గారిని అవకాశం ఇవ్వాలా, వారు బాగా సేవలు చేసిండ్రు, మళ్ళీ వారికి అవకాశం ఇస్తే బాగుంటుందని అప్పుడు గతంలో ఉన్న కమిటీలో రంగారావు గారు తదితరులు ఉండే వాళ్ళందరికీ నేను రిక్వెస్ట్ చేసి సుభాష్ గారికి మళ్ళా నా మాట మీద వాళ్ళు పక్కన జరిగి మళ్ళీ సుభాష్ గారికి ప్రెసిడెంట్ ఇవ్వడం జరిగింది ఆనాడు। కానీ వారి మరణం పట్ల చాలా నాకు అయితే చాలా మిత్రుడుగా ఉండే సుభాష్ గారు చాలా దుఃఖంగా అయింది। वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे के मौके पर ह्यूमन राइट्स काउंसिल ऑफ इंडिया के रियासती सदर मोहसिन अहमद की जानिब से गरीब व मुस्तहिक तलबा में जरूरी तालीमी अशिया की तकसीम, तालीम से ही सुनहरा मुस्तकबिल मुमकिन। वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे के मद्देनजर ह्यूमन राइट्स काउंसिल ऑफ इंडिया कौमी सदर शेख हाजी की हिदायत पर तेलंगाना रियासती सदर मोहसिन अहमद की जानिब से जिले निर्मल के मंडल सुहरना के मौजे पेंडलधारी गाँव में बिला लिहाज मजहब व मिलत तलबा में जरूरी तालीमी अशिया की तकसीम अमल में लाई गई। इस तकरीब में इलाके के रहनदिल हकीम नागराव को मदऊ किया गया और इनके हाथों से तलबा में तालीमी अशिया की तकसीम अमल में लाई गई। वाज़ेह है कि नागराव मुफ्त में अवाम को शुगर, किडनी स्टोन व दीगर बीमारियों की दवा फराहम करते हैं। इस मौके पर इन्होंने कहा कि आज के बच्चे कल के हिंदुस्तान का मुस्तकबिल है और वो अगर तालीम याफ्ता होंगे तो अपने दस्तूरी हुकूक का अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं। इसीलिए हम आज अपील कर रहे हैं कि अपने बच्चों को तालीम दे ताकि अपने मुस्तकबिल को बेहतर बना सके। इस मौके पर तंजीम के कई अरकान ने शिरकत की। आज इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे है, जिसकी बिना पे ह्यूमन राइट्स काउंसिल ऑफ इंडिया स्टेट प्रेसिडेंट सैयद मोहसिन अहमद, मैं हमारे नेशनल प्रेसिडेंट शेख हाजी साहब की जो है हिदायत पे आज पेंडलदरी एक विलेज, ये जो है सारंगपुर मंडल है और इसका डिस्ट्रिक्ट जो है निर्मल है, यहाँ पे हम बच्चों को आके एक तालीम के मकसद से यहाँ पे बच्चों को जो है कुछ स्लेट्स, बुक्स, पेंटिंग बुक्स वगैरह जो है तकसीम करें। और हमारी सोच ये है कि तालीम की वजह से जो है हम ह्यूमन राइट्स में जो है आगे बढ़ सकते हैं। एक इंसानी हुकूक के लिए तालीम का रहना बहुत ज़रूरी है, जिसकी बिना पे हम यहाँ पे आके यहाँ के गांव के लोगों में इस चीज़ का जो है खुलासा करके यहाँ के लोगों को जो है एहसास दिलाना चाह रहे हैं और यहाँ पे जो है तालीम को और आगे बढ़ाने की जो है इंशाल्लाह हम फ्यूचर में पूरी से पूरी जो है कोशिश करेंगे कि यहाँ से जो है लोग खिदमत खल्क के लिए आगे बढ़ें और इंसानी हुकूक के जो है हक के लड़ने के लिए जो है अपनी आवाज़ को जो है ऊंची करे और अपने हक के लिए जो है इंसानियत के लिए जो है काम करे। यहाँ पे जो है आने का हमारा मकसद ये था कि हमारे जो है नागाराव है, इनकी जो है काफ़ी खिदमत है। इन्होंने कैंसर, स्टोन और जो है ऐसी कई बीमारियों का जो है एक अपने इलाज यानी कि जो है आयुर्वेदिक का इलाज जो है कर रहे हैं, जिसकी बिना पे कई लोगों को जो है इनके जरिए जो है अल्लाह ताला शिफा दे रहा है। तो लिहाजा जो है हमारी इनके साथ जो है एक खास मीटिंग हुई, जिसकी बिना पे जो है हम इनको आज मिले और हम इनसे चाह रहे हैं कि और जो है हम खिदमत ले, क्योंकि ये जो है कोई कीमत
और जो है कोई हदिया वगैरह जो है नहीं लेते हैं, बिल्कुल जो है मुफ्त काम कर रहे हैं। बस जिले कामारेड्डी कलेक्टर डॉक्टर ए शरत ने आज कलेक्टर कैंप में देहाती तरक्की खवातीन फंड मिपमा अहदेदारान के साथ इजलास का इनेकाद अमल में लाया। जिले कामारेड्डी कलेक्टर डॉक्टर ए शरत ने बरोज जुमेरात को कलेक्टर कैंप में देहाती तरक्की खवातीन फंड मिपमा अहदेदारान के साथ इजलास मुनक्किद करते हुए कहा कि सेल्फ हेल्प ग्रुप यूनियन का क़याम अमल में लाने के ताल्लुक से DPM APM की जानिब से मुस्तहिक होने वालों की शनाख्त करके तकरीबन 18,000 अफराद को सेल्फ हेल्प ग्रुप यूनियन इस माह की 25 तारीख से पहले क़याम अमल में लाने के साथ ऑनलाइन इंदराज रजिस्ट्रेशन बैंक अकाउंट का मरहला जल्द मुकम्मल करने की हिदायत जारी। DPM APM दोनों मुत्तहिद होकर नए सेल्फ हेल्प ग्रुप यूनियन के लिए शौर बेदार इजलास का इनेकाद अमल में लाते हुए इससे ताल्लुक रखने वाली फहरिस्त को हर रोज हवाले करने के लिए कहा। इसी तरह से इन्होंने मजीद कहा कि सेल्फ हेल्प ग्रुप यूनियन के जनरल बैंक लीकेज के तहत 12,752 यूनियन के तहत 10,615 यूनियन को 432 करोड़ रुपए खर्चाजात फ्राहम करने के मकसद के तहत 338 करोड़ रुपए खर्चाजात फ्राहम करने का इजहार करते हुए इन्होंने माबाकी खर्चाजात को 25 तारीख तक मुकम्मल करने की हिदायत दी। खवातीन फंड खर्चाजात के तहत 78 करोड़ क्रेडिट टारगेट के 38 करोड़ रुपए खर्चाजात फ्राहम करने का इंकशाफ किया। जिले निजामाबाद कलेक्टर सी नारायण रेड्डी ने आज सेल कॉन्फ्रेंस के तहत मंडल के अहम तरीन ओहदेदार MPDO, APO, DRDO व दीगर ओहदेदारान के साथ इजलास का इनेकाद अमल में लाया। जिले निजामाबाद कलेक्टर सी नारायण रेड्डी ने बरोज जुमेरात को सेल कॉन्फ्रेंस के तहत मंडल के अहम तरीन ओहदेदार MPDO, APO, DRDO और दीगर ओहदेदारान के साथ अहम नुकात पर इजलास का इनेकाद अमल में लाते हुए कहा कि मौजे के सेक्रेटरी पंचायत व रोजगार तमानियत स्कीम से ताल्लुक रखने वाले कामों में अपनी खिदमात को यकीनी बनाने की हिदायत जारी की और कहा कि रोजगार तमानियत स्कीम के तहत जारी कामों का मरकजी यूनियन सेक्रेटरी की जानिब से जायजा लेने के बाद भी मौजे के सतह में तमाम कामों से ताल्लुक रखने वाले 7 रजिस्टर इंदराज करने की हिदायत देने के बावजूद भी कुछ मौजूआत में इन कामों को मुकम्मल न करने पर बरहमी का इजहार करते हुए इन्होंने माबाकी कामों को 2 दिन के अंदर मुकम्मल न करने पर कार्रवाई करने का इंतबा दिया। रियासती वजीर आला KCR ने आज तूफानी दौरा करते हुए नरसापुर में 9 तामीरशुदा डबल बेडरूम मकानात का इफ्तिताह अमल में लाया। रियासती वज़ीर आला KCR ने आज सिद्दीपेट का तूफानी दौरा करते हुए नरसापुर में ज़ेरे तामीर शुदा डबल बेडरूम मकानात का इफ्तिताह अमल में लाकर खुसूसी मजहबी रस्म रिवाज अंजाम देने के बाद मुस्तहिक खानदानों को मकानात हवाले की। 2460 डबल बेडरूम मकानात को गेटेड कम्युनिटी के मुकाबले के बनिस्बत में हुकूमत तेलंगाना की जानिब से मुल्क भर में मिसाली तर्ज पर तामीर करने के साथ इसको वज़ीर आला KCR के नाम से मौसूम किया जाएगा। नरसापुर में डबल बेडरूम मकानात को तमाम अहम तरीन सहूलत को मद्देनजर रखते हुए तकरीबन 163 करोड़ मारूफ से 2460 मकानात तामीर करने के लिए कहते हुए कहा कि पहले मरहले के तौर पर 1341 मकानात को चीफ मिनिस्टर KCR के हाथों आगाज अमल में लाने के बाद CM KCR की सदारत में 144 मुस्तहिक खानदानों को मकानात हवाले किए। इसी तरह से माबाकी अफराद एक फिरके के तौर पर नए मकानात में मुस्तहिक दाखिल होने पर मुस्तहिक को घर के पट्टे के साथ करंट का मीटर नंबर, वाटर कनेक्शन, दस्तावेज, प्रॉपर्टी टैक्स, कॉमन एफिडेविट, पकवान गैस से ताल्लुक रखने वाले दस्तावेजात को हवाले किए। माबाकी 1119 मकानात को नए मरहले के तहत मुस्तहिक अफराद को मंजूर करने का इंकशाफ किया। आर्मी रुकन असम्बली व PUC कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी ने अपने हल्के कोमनपल्ली के जगन मोहन रेड्डी की दोख्तर की शादी में शिरकत कर मुबारकबाद पेश की। आर्मी रुकन असम्बली PUC कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी ने अपने हल्के के कोमनपल्ली से ताल्लुक रखने वाले जगन मोहन रेड्डी की दोख्तर की शादी तकरीब में शिरकत करके नए शादीशुदा जोड़े को मुबारकबाद देते हुए नेक तौक़ात वाबिस्ता के इस प्रोग्राम में TRS पार्टी से वाबिस्ता कायदीन व कारकुनों ने शिरकत की। बोधन शहर के मसरूफ तरीन इलाके में कार के अंदर मुश्तबा हालात में एक शख्स की नाश बरामद, कई कयास आ रहे हैं जारी, पुलिस मसरूफ तहकीकात। जिले निजामाबाद बोधन के पोस्ट ऑफिस रोड पर नामालूम कार सुबह से शाम तक मशकूक हालात में ठहरने पर मुकामी अवाम की जानिब से पुलिस को इत्तला देने पर फौरी मौके वारदात पर पहुंचकर जांच पड़ताल करने से कार में मौजूद शख्स फौत पाया गया। वो हैदराबाद के पारसी गुट्टा के साकिन शागंटी श्रीनिवास गौड के तौर पर शनाख्त होने का इजहार करते हुए फौजशुदा शख्स को कत्ल करने का अंदेशा जाहिर करते हुए हलाक होने वाले शख्स के मोबाइल नंबर के तहत महलूकिन खानदान को खबर पहुंचाकर केस दर्ज करके तहकीकात करने का इंकशाफ किया।
जिले महबूबाबाद डोरनकल मंडल बोडराई टांडा ग्राम पंचायत जिले में मिसाली नाम हासिल करने पर कलेक्टर वीपी गौतम के हाथों पंचायत सरपंच तेजावत राजू को 5 लाख नकद रकम अदा की गई। जिले महबूबाबाद डोरनकल मंडल बोडराई टांडा ग्राम पंचायत जिले में बेहतरीन पंचायत के तौर पर नाम हासिल कर सरफहरिस्त आने से कलेक्टर वीपी गौतम के हाथों पंचायत सरपंच तेजावत गमी राजू को 5 लाख रुपए नकद रकम अदा करते हुए पंचायत सेक्रेटरी प्रवीणा को सर्टिफिकेट हवाले कर चालपोशी करके तहनीत पेश की गई। इसको मद्देनजर रखते हुए बोडराई टांडा ग्राम पंचायत के सरपंच गमी राजू ने इजहार ख्याल करते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत के ज़ेर इख्तियार आने के बाद रियासती हुकूमत की जानिब से फ्राहम करदा स्कीमात जैसे हरितारम सरकारी प्रोग्राम वाइकुंठधामम कुदरती जंगलात डंपिंग यार्ड नर्सरी को रूबे अमल लाकर प्लास्टिक से निजात दिलाते हुए आज जिले में मिसाली ग्राम पंचायत के तौर पर नाम हासिल करने पर कलेक्टर के हाथों से 5 लाख रुपए अवार्ड लेना काफी मसरत की बात है। कहते हुए इन्होंने ग्राम पंचायत मेंबर व नौजवान ओहदेदारान का शुक्रिया अदा किया। शदीद सर्दी के बायस गर्म कपड़ों की फरोख्त में भी इजाफा। गुज़िश्ता एक हफ्ते से शदीद सर्दी के बायस गर्म कपड़ों की फरोख्त में इजाफा हुआ है। खलीलवाड़ी में वाक़े कपड़ों की दुकानात पर ग्राहकों का हुजूम है, जिससे मौसम सरमा के आगाज के साथ ही गर्म कपड़ों की फरोख्त में इजाफा होने से ताजरीन में जहां इत्मीनान का इजहार किया जा रहा है, वही अवाम में गर्म कपड़ों की कीमतों में इजाफे से तशवीश पाई जाती है। 300 ता 600 और 600 ता 1200 रुपए में मुख्तलिफ अक़साम के गर्म कपड़े फरोख्त किए जा रहे हैं। स्वेटर्स, जैकेट, ग्लव्स, कैप्स और दूसरे गर्म कपड़े तेजी से फरोख्त हो रहे हैं। तेलंगाना यूनिवर्सिटी निजामाबाद के बीएड इम्तिहानात के नताइज का ऐलान। तेलंगाना यूनिवर्सिटी निजामाबाद के ज़ेर एहतिमाम मुत्तहदा ज़िले निजामाबाद व कामारेड्डी के हुदूद में वाक़े तमाम सरकारी व खानगी बीएड कॉलेजों में जारिया साल मुनक़दा बीएड साल अव्वल, दुव्वम, सुवम और चारुम सेमेस्टर इम्तिहानात के नताइज का यूनिवर्सिटी हज़ा अहाते में रजिस्ट्रार की जानिब से 9 दिसंबर को ऐलान का तनासुब 95% रहा। तफसीलात के मुताबिक साल अव्वल में 96 उम्मीदवारों ने कामयाबी हासिल की, जबकि 17 उम्मीदवारों ने अपनी नाकामी से 2-4 हो गए। इसी तरह साल दुव्वम में 259 उम्मीदवारों ने कामयाबी हासिल की, जबकि 20 उम्मीदवारों को नाकाम करार दिया गया। साल सुवम में 249 कामयाब करार दिए गए और 11 उम्मीदवारों को नाकामी का सामना करना पड़ा और साल चारुम में 1237 तलबा व तालिबात को कामयाब करार दिया गया और 72 उम्मीदवारों को अपनी नाकामी से 2-4 होना पड़ा। ओपन एसएससी और इंटरमीडिएट में दाखिला उम्मीदवार इस्तिफादा हासिल करें। जिले महतमम तालीमात दुर्गा प्रसाद और मुत्तहदा जिले निजामाबाद कामारेड्डी कोऑर्डिनेटर रविंदर ने अपने एक एलामी में बताया कि तेलंगाना ओपन स्कूल सोसाइटी के तहत तालीमी साल बराए 2020-21 के लिए ओपन एसएससी और इंटरमीडिएट में दाखिलों के लिए एलामी की इजराई अमल में लाई गई है। एसएससी और इंटरमीडिएट के कोर्सेज में दाखिल के ख्वाहिशमंद उम्मीदवार 10 दिसंबर तक 5 जनवरी के दौरान फीस अदा करते हुए दाखिला हासिल कर सकते हैं। 6 था 15 जनवरी माह जुर्माना फीस अदायगी की सहूलत रहेगी। उम्मीदवार दाखिला फीस मी सेवा सेंटर्स पर अदा कर सकते हैं। मज़ीद तफसीलात के लिए जिले कोऑर्डिनेटर रविंदर के सेल नंबर 8008403518 पर रब्त पैदा कर सकते हैं। एसएससी या इंटरमीडिएट में तर्क तालीम करने वाले लड़के लड़कियां ओपन एसएससी या ओपन इंटरमीडिएट के जरिए तालीम के सिलसिले को जारी रखते हुए सुनहरे मौके से इस्तिफादा करें। निजामाबाद में 9, कामारेड्डी में 11 अफराद कोरोना से मुतासिर। निजामाबाद जिले में कल कोरोना के 8 नए पॉजिटिव केस दर्ज किए गए, जिनमें निजामाबाद शहर में सीताराम नगर कॉलोनी, विनायक नगर, चंद्रशेखर कॉलोनी, हेल्थ सेंटर्स के अलावा पोतंगल, आरमूर, दुबे में कोरोना मुतासिर पाए गए। कामारेड्डी जिले में कोरोना के मजीद 11 पॉजिटिव केस दर्ज किए गए हैं, जिनमें पिटला में 7, कामारेड्डी में 3 और पोलकल में 1 मुतासिर पाया गया है। कोरोना वायरस से महफूज रहने के लिए अवाम पर एहतियात करने पर जोर दिया जा रहा है। समाजी फासले के साथ हैंड सैनिटाइजर और मास्क का इस्तेमाल जरूरी है। जमीनात, मकानात, प्लांट्स के रजिस्ट्रेशन बंद होने की वजह से जिले निजामाबाद को ताहाल 50 करोड़ का नुकसान। 6 सितंबर 2020 से तेलंगाना हुकूमत ने जायदाद रजिस्ट्रेशन के अमल को मुअत्तल कर दिया था। तकरीबन 100 दिन के वक्फे में जिले निजामाबाद को 50 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। रजिस्ट्रेशन का अमल मुस्तविद हो जाने की वजह से हुकूमत तेलंगाना को सरकारी खजाने को 1000 करोड़ से ज्यादा रुपए की आमदनी मुतासिर हुई है। माली साल 2020-21 में महकमे रजिस्ट्रेशन की पहली सामाही की आमदनी को 600 करोड़ से ज्यादा थी, जबकि आम आमदनी 1500 ता 1800 करोड़ रुपए है। इत्तलात के मुताबिक
जायदाद के रजिस्ट्रेशन के जरिए माह अप्रैल में होने वाली आमदनी सिर्फ 12 करोड़ रुपए थी। माह मई में आमदनी में 200 करोड़ रुपए का इजाफा हुआ, जबकि जून के माह में आमदनी दुगनी होकर 400 करोड़ रुपए हो गई। महकमे रजिस्ट्रेशन का कारोबार हैदराबाद में 500 था, 600 करोड़ रुपए होगा। महकमे रियासत भर में 5000 से ज्यादा दस्तावेजात का रजिस्ट्रेशन करता है। चूँकि लॉकडाउन की वजह से जो घरों से बाहर ना सके और तिजारत मुअत्तल रही, इसीलिए अप्रैल और मई में महकमे रजिस्ट्रेशन की आमदनी बहुत कम हुई। जिले निजामाबाद में 15 जून तक 22 जून मुकम्मल दुकानात बंद रहने के बायस रजिस्ट्रेशन ऑफिस में तोखे से बहुत कम काम देखा गया। रियासत भर और निजामाबाद में स्टाम्प एंड रजिस्ट्रेशन के दफातर में पूरी तरह खदमात का आगाज मई में हो चुका था, लेकिन जिले में बढ़ते हुए कोरोना वायरस के असर के बायस 15 था 22 जून बंद मनाया। लॉकडाउन के कवायद में नरमी के बाद निजामाबाद रजिस्ट्रेशन ऑफिस में सिर्फ कुछ ही दिन जबरदस्त गहमा गहमी देखी गई। निजामाबाद कामारेड्डी में 10 सब रजिस्ट्रार ऑफिसेस मौजूद है। कोरोना वायरस लॉकडाउन के बायस रियल एस्टेट प्रॉपर्टी डीलिंग के शोबे में तमाम काम मांद पड़े हुए थे। जो रजिस्ट्रियां अंजाम दी गई वो लॉकडाउन से पहले तयशुदा मामला थे जो इल्तिवा में पड़ गए थे। हुकूमत को तौक़े थी कि मई के इख्तिताम तक रियासत में रजिस्ट्रेशन ऑफिस से कम 20 करोड़ की आमदनी होगी, लेकिन बवसूख जराए से पता चला है कि रियल एस्टेट कारोबार मांद पड़ा हुआ है। मकानात और जमीनात की खरीद और फरोख्त तो लॉकडाउन के बाद ठंडी पड़ी हुई है। हुकूमत तेलंगाना के अहकामात पर 8 सितंबर से जमीनात, मकानात, प्लाट्स के रजिस्ट्रेशन पर आर्जी तौर पर रोक लगा दी गई है। निजामाबाद जिले रजिस्ट्रार दफ्तर के बमुश्मिल तमाम दफातर पर जमीनात व मकानात के रजिस्ट्रेशन को रोक दिया गया है। दफ्तरी काम काज जारी है। गुज़िश्ता 95 दिनों से रजिस्ट्रेशन पर आर्जी रोक लगाने से जिले निजामाबाद को 50 करोड़ रुपए की आमदनी बंद हो गई है। नॉन लेआउट के अलावा लेआउट वेंचर्स के प्लाट्स की भी रजिस्ट्री नहीं की जा रही है। रजिस्ट्रेशन दफ्तर में तमाम ओहदेदार ड्यूटी के औकात कार सुबह 10 था शाम 5 बजे। पुलिस स्टेशन से रुजू होने वाले दरख्वास्त गुजारों को तेज रफ्तार इंसाफ फराहम करे। बोधन असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस रामाराव ने वर्नी पुलिस स्टेशन का दौरा करते हुए रिकॉर्ड्स की तनखी की। इन्होंने ओहदेदारान पुलिस को हिदायत जारी की कि इंसाफ के लिए पुलिस स्टेशन रुजू होने वाले दरख्वास्त गुजारों को तेज रफ्तार इंसाफ फराहम करते हुए बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा करें, पेंडिंग केस की एक्सपी करें। दलित जर्नलिस्ट संगम के 5 साल मुकम्मल होने पर सदर जिले मुत्तहिदा निजामाबाद बी चंद्रशेखर की निगरानी में आरमूर आर&बी गेस्ट हाउस पर एक प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया। दलित जर्नलिस्ट संगम के 5 साल मुकम्मल होने पर सदर जिले मुत्तहिदा निजामाबाद पी चंद्रशेखर की निगरानी में आरमूर आर&बी गेस्ट हाउस पर एक प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया। जर्नलिस्ट कायदीन को तहनीत पेश की गई और केक काट करके तकसीम किया गया। इस मौके पर दलित जर्नलिस्ट कायद पी चंद्रशेखर ने मुखातिब करते हुए कहा कि दलित जर्नलिस्ट संगम का मकसद सहाफियों के मसाइल को हल करने, समाजी बुराइयों का खात्मा और दलितों पर होने वाले मजालिम को मुत्तहिद होकर इसका सामना करना है। इस समाज में मजलूमों पर मजालिम और बुराइयों को रोकने की तरफ सहाफियों को तवज्जो दिलाई और बताया कि बी.आर. अम्बेडकर ने दस्तूर को, सहाफत को जमहूरियत का चौथा सुतून करार दिया। इसकी हिफाजत हमारी जिम्मेदारी है। इस मौके पर सेक्रेटरी बी. गोपी सुरेश, दलित संगमों के कायदीन के रामलू, पी. राजू, गंगाराम व दीगर मौजूद थे। 12 दिसंबर को शहर में लोक अदालत का इनेकाद। प्रिंसिपल जिला जज एंड सेशन जज साई रमा देवी ने बताया कि कोविड के बायस जिला निजामाबाद में मजाजी तरीके पर कौमी लोक अदालत का 12 दिसंबर को इनेकाद अमल में आएगा। इस लोक अदालत में क्रिमिनल, चेक बाउंस, बैंक रिकवरी, हादसात, सिविल, खानदानी इख्तिलाफात के 2000 से ज्यादा केसों की निशानदेही की गई। निजामाबाद जिले की तमाम अदालतों में इन एक्सवी के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। తెలిసిందే ఈ నెల 12వ తారీఖున జాతీయ నేషనల్ లోక్ అదాలత్ ఇక్కడ నిర్వహింపబడుతూ ఉంది నిజామాబాద్ మరియు కామారెడ్డి జిల్లాలలో। మరి ఈ రోజు వరకు కూడా రాజీకి తగ్గటువంటి కేసులు 11,800 కేసులు పెండింగ్ ఉండగా 2,184 కేసులు సెటిల్మెంట్కి ఐడెంటిఫై చేయడం జరిగింది। అందులో 1,825 కేసుల్లో నోటీసెస్ ఇష్యూ చేయడం జరిగింది। ఇంకా 1,543 కేసెస్లో ఇవాళ రేపట్లో కూడా నోటీసెస్ जारी చేయడం జరుగుతూ ఉంది। ICET उम्मीदवारों के दस्तावेजात की तनखी। तेलंगाना ICET 2020 में अहल उम्मीदवारों के MBA, MCA में दाखिले के लिए दस्तावेजात की तनखी का कल से आगाज अमल में आया। शहर के सरकारी बॉयज पॉलिटेक्निक कॉलेज कंटेश्वर में काउंसलिंग के पहले दिन
87 उम्मीदवारों के दस्तावेजात की तनकीद की गई। प्रिंसिपल राम कुमार ने बताया कि 10 दिसंबर तक उम्मीदवारों के दस्तावेजात की तनकीद की जाएगी। इन्होंने तमाम उम्मीदवारों से ख्वाहिश की कि स्लैट बुकिंग करा लें। दस्तावेजात की तनकीद के बाद 13 दिसंबर से कबल कॉलेजेस में ऑनलाइन दाखिला हासिल कर सकते हैं। अलावाजी DEE सेट 2020 और टेक्निकल सर्टिफिकेट कोर्स में अहल उम्मीदवारों के भी मुख्तलिफ मुकामात पर दस्तावेजात की तनकीद करते हुए दाखिला दिए जा रहे हैं। आला तालीमी सतह पर तालीमी सरगर्मियों की कुशादगी अमल में लाने की गर्ज से दस्तावेजात की तनकीद की जा रही है। जिले निजामाबाद में गुज़िश्ता 9 माह के दौरान 14,493 कोरोना केसेस दर्ज। तेलंगाना में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 596 नए केसेस दर्ज किए गए, जबकि 3 अमवात वाक़ हुए हैं। महकमे सेहत के बुलेटिन के मुताबिक रियासत में 921 अफराद कोरोना से सेहतियाब हुए हैं। तेलंगाना में कोरोना केसेस की तादाद में खासी कमी वाक़ हुई है और पॉजिटिव केसेस से ज्यादा सेहतियाब होने वाले मरीजों की तादाद दर्ज की जा रही है। कोरोना से अभी तक 1470 अफराद फौत हुए, जबकि पॉजिटिव केसेस 2,72,719 हो चुके हैं। एक्टिव केसेस की तादाद 8,498 है। गुज़िश्ता 2 दिनों में 59,471 कोरोना टेस्ट किए गए, जिनमें से 803 का नतीजा आना बाकी है। ग्रेटर हैदराबाद में 102 नए केसेस दर्ज किए गए, जबकि अजला में कोत्तागुड़म 26, जगतियाल 18, कामारेड्डी 12, करीमनगर 36, खम्भम 17, महबूब नगर 13, महबूबाबाद 15, मंचियाल 19, मलकाजगिरी 47, मलक 17, नगर कर्नूल 16, नलगुंडा 24, निजामाबाद 11, सिलसिला 11, रंगारेड्डी 46, सूर्यापेट 15, वनापर्ती 11, विकाराबाद 10, वारंगल अर्बन 19 और भुवनेश्वर में 10 नए केस दर्ज हुए हैं। मुत्तहदा जिले निजामाबाद MLC के कविता साहिबा ने दिलसुख नगर में वाक़े साईं बाबा मंदिर में खुसूसी पूजा पाठ अंजाम देकर हुकूमत की जानिब से मंजूर करदा ISO सर्टिफिकेट मनादिर कमेटी के सुपुर्द किए। मुत्तहदा जिले निजामाबाद MLC के कविता साहिबा ने आज दिलसुख नगर के साईं बाबा मंदिर में खुसूसी पूजा पाठ अंजाम देने के बाद इन्होंने साईं बाबा मंदिर को आए हुए ISO सर्टिफिकेट मनादिर कमेटी के सुपुर्द करने के बाद अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि साईं बाबा मंदिर के लिए ISO सर्टिफिकेट का आना काबिल तरीन बात है। इन्होंने मजीद बात करते हुए कहा कि मनादिर कमेटी की तरक्की के लिए रियासती हुकूमत की जानिब कार्रवाई करने का इंकशाफ किया। इस प्रोग्राम में MLA सुधीर रेड्डी, MLC दयानंद, मनादिर चेयरमैन शिवैया, ISO सर्टिफिकेट मेंबर डॉक्टर विजय गंगा ने शिरकत की। 11 दिसंबर को पूरे मुल्क में खानगी हॉस्पिटल्स बंद। IMA निजामाबाद की जानिब से भी शहर में बंद का एहतमाम। आज शहर के इंडियन मेडिकल एसोसिएशन हैदराबाद में IMA रियासती नायब सदर डॉक्टर कविता रेड्डी सहाफती नशिस्त का एहतमाम करते हुए कहा कि मरकजी हुकूमत की जानिब से आयुर्वेदिक डिग्री रखने वाले अफराद को सर्जरी की इजाजत देने के खिलाफ मुल्क भर में एक रोजा तमाम खानगी हॉस्पिटल्स के बंद का ऐलान को तायद करते हुए 11 दिसंबर को शहर के तमाम खानगी हॉस्पिटल्स भी बंद का हिस्सा बनते हुए अपने खिदमात बंद रखेंगे और मरकजी हुकूमत की जानिब से जब तक ये बिल खारिज नहीं किया जाएगा तब तक इस तरह के एहतजाज जारी रखने का इन्होंने इजहार किया। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन రేపు అనగా 11వ తేదీ ఉదయం 6 గంటల నుంచి సాయంకాలం 6 గంటల వరకు ఓపీ సేవలు అన్నీ కూడా దేశవ్యాప్తంగా బంద్ చేస్తున్నాము। ఇక్కడ మేము ఎమర్జెన్సీ సేవలు మరియు కోవిడ్ పేషెంట్స్కు మాత్రం అందరు డాక్టర్లు అందుబాటులో ఉంటారు। ఈ పోరాటము ప్రజా పోరాటం, ఇది ప్రజల కొరకు వైద్యులు చేసే ఒక పోరాటం। निजामाबाद MP अरविंद की पुलिस मुलाजमीन पर बेबुनियाद इल्जामात आयद करने से जिले पुलिस इंतजामिया की जानिब से पुरजोर मजम्मत। निजामाबाद MP अरविंद ने नया वारंदी हादसे से मुतालिक पुलिस इंतजामिया पर बेबुनियाद इल्जामात आयद करना काफी अफसोसनाक बात है। इतना ही नहीं, तमाम पुलिस मुलाजमीन के खिलाफ मनगढ़ंत बातें करने के साथ दिल को ठेस पहुंचाना एक जिम्मेदार रुकन पार्लियामेंट को शोभा नहीं देता, क्योंकि वो अव्वाम के जरिए इख्तितार में आकर अव्वाम को तहफ़्फ़ुज़ फ्राहम करने वाले पुलिस मुलाजमीन की कारकर्दगी पर सवाल निशान लगाकर इनके खिलाफ बेबुनियाद बातें करते हुए इनके जज्बात को तकालीफ पहुंचाने पर तमाम महकमे पुलिस इंतजामिया की जानिब से MP अरविंद की इस्तेखाल अंगेज बातों पर जोर मजम्मत करने का इंकशाफ किया। इख्तिताम से खबर नजर डालते हैं आज के अहम सुर्खियों पर।
गेटेड कम्युनिटीज के बिल मुकाबिल डबल बेडरूम, सिद्दीपेट में डबल बेडरूम, IT पार्क, डिग्री कॉलेज, राइतु वेदिका व तेलंगाना भवन का रियासती वज़ीर आला KCR, हरीश राव व विमल प्रशांत रेड्डी ने किया दौरा। बोधन रुकन असम्बली शकील आमिर की नौ मुंतखबा मंदिर कमेटी की जानिब से तहनीती तकरीब का एहतमाम। रोशन टीवी की खबर का असर, दरगाह बड़ा पहाड़ पर रकम वसूली मामले पर वक्फ बोर्ड आई हरकत में, लेकिन वो दरगाह की तरक्की के लिए बोर्ड अभी खामोश, मुहिम अभी जारी। मरकजी हुकूमत के नए बिल के खिलाफ 11 दिसंबर बरोज़ जुम्मा शहर व मुल्क के तमाम खानगी हॉस्पिटल्स बंद। IM में सदर डॉक्टर कविता रेड्डी का सहाफती बयान। वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे के मद्देनजर ह्यूमन राइट्स काउंसिल ऑफ इंडिया की जानिब से तलबा में तोहफों की तकसीम। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।